Friends, once again welcome on our YouTube channel. In classical mechanics, we will discuss today about D'Alembert's principle. तो आज का क्लासिकल मैकेनिक्स का हमारा लेक्चर है D'Alembert प्रिंसिपल. In this lecture, we will discuss about generalized Lagrange's equation of motion and D'Alembert's प्रिंसिपल. तो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है उसको डिटेल में स्टडी किया था. नाउ इन आवर दिस लेक्चर वी विल डिस्कस जनरलाइज्ड लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन एंड साथ में हम यहां पर D'Alembert प्रिंसिपल के बारे में भी डिस्कस करेंगे. Now, generalized Lagrange's equation of motion. तो generalized Lagrange's equation of motion क्या होगी? यहां पर हम इसको डिटेल में लेंगे और लास्ट लेक्चर में हमने Lagrange's equation of motion ऑफ फर्स्ट काइंड डिस्कस किया था, उसी को यहां पर हमको जनरलाइज करना है. So generalized Lagrange's equation of motion. Let the number of constraints for a motion of n particles be k and it is given by Gi Rj dot t equal to 0. So यहां पर हम n पार्टिकल सिस्टम ले रहे हैं एंड n पार्टिकल सिस्टम के साथ में यहां पर हमारे पास में k कंस्टेंट्स हैं. सो अगर n पार्टिकल सिस्टम के लिए k कंस्टेंट्स को अगर हम रिप्रेजेंट करें, अगर हम शो करें, तो उसके लिए इक्वेशन हमारे पास में है Gi विच इज अ फंक्शन ऑफ Rj डॉट एंड T. Rj मीन्स पोजिशन, Rj डॉट मीन्स वेलोसिटी एंड T मीन्स टाइम. सो ये जो कंस्टेंट है, दिस कंस्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन, वेलोसिटी एंड टाइम. Since the number of constants are k, so the value of I is running from 1 to k. अब n पार्टिकल सिस्टम के साथ में हमने यहां पर k कंस्टेंट्स लिए हैं एंड कंस्टेंट को हमने gi से डिनोट किया है. सो I की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेकर k तक होगी. सो दिस इज द ith कंस्टेंट and Hi is equal to dGi by dt, and this is the condition for non-holonomic constraint. So अगर constraint हमारा non-holonomic हो, means if the constraint is velocity dependent, then the relation will be Hi is equal to dGi by dt and H equal to d2g by dt2. This is for holonomic constraint. So if constraint is velocity independent, then the relation is given by this, and if the constraint is non-holonomic, means they depends on velocity, then the relation is this one. The force of constraint on jth particle due to ith particle. Now constraint force की हम बात कर रहे हैं. So the constraint force on jth particle due to ith constraint. So ith constraint के कारण jth particle पर जो force of constraint होगा वो क्या होगा? F
ji means the force of constraint on jth particle due to ith constraint. So this is Fji is equal to lambda I del hi upon del rj double dot. The total force of constraint on jth particle. So different particle के कारण जो jth particle पर constant force लगेगा, उन सारे constant force का अगर हम टोटल लें, सम करें, तो वो क्या आएगा? This was the constant on jth particle due to ith. So ये जो है इसका हम सिग्मा ले लेते हैं, क्योंकि सारे कंस्टेंट फोर्स को हमको ऐड करना है जो भी jth पार्टिकल पर लग रहे हैं. सो एफ जे इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to k लैम्डा आई डेल एच आई अपॉन डेल आर जे डबल डॉट. से सारे कंस्टेंट जो jth पार्टिकल पर लग रहे थे उन सारे कंस्टेंट फोर्स को हमने ऐड कर दिया है. एंड कंस्टेंट हमने कहा था के कंस्टेंट्स हैं, सो सिग्मा आई इक्वल टू 1 to k वेयर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा k आर k Lagrange's multiplier. Since lambda is Lagrange's undetermined multiplier, it means lambda 1 lambda 2 lambda k are k Lagrange's undetermined multiplier. So lambda को हमने Lagrange's undetermined multiplier कहा था, और यहां पर सिग्मा i इक्वल टू 1 to k है, मीन्स i की वैल्यू 1 से k तक रन कर रही है. सो इसके कारण जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी? लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा k. सो दीज आर k Lagrange's multipliers. Now, Newton's equation of motion for jth particle having mass mj. So Newton's equation of motion अब हम jth पार्टिकल के लिए लिखते हैं, एंड jth पार्टिकल जो है उसका मास mj कंसिडर करते हैं. एंड फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू dp by dt means force is equal to rate of change of linear momentum. एंड यहां पर हमारे पास में कांस्टेंट फोर्स Fj है. सो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखोगे तो वो क्या आएगा? एम आर डबल डॉट माइनस एफ अप्लाइड माइनस लैम्डा डेल एच अपॉन डेल आर डबल डॉट इक्वल टू 0. ये जनरल फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है. नाउ jth पार्टिकल की बात कर रहे हैं, सो m को हम एम जे लिख देते हैं, आर डबल डॉट को आर जे डबल डॉट, एंड दिस इज the applied force on jth particle. So Fj applied, and this is the force of constraint, and force of constraint on jth particle is Fj. So ये इक्वेशन हमारी मॉडिफाई हो जाएगी, और वो क्या आएगी हमारे पास में? Mj Rj डबल डॉट माइनस Fj applied. This is the external force और applied force on jth particle minus sigma I equals to 1 to k lambda I del hi upon del rj double dot equals to 0. This is the total force of constraint on jth particle. Here Fj applied is total external force applied on the jth particle. तो jth पार्टिकल पर जो भी हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है उसका सम ये टोटल Fj अप्लाइड है. हियर द टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन आर 3n plus k.
सो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन हमको 3n+k मिलेगी, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल एंड देयर आर 3 components: x component, y component and z component. So the number of equation due to n particle is 3n and there are k constraints, so the total number of equations will be 3n plus k. Here n is the number of particles and k is constant. So number of particle हमारा n है and constant हमारा k है. So total number of equation हमारे 3n plus k आ जाएगी. Now we take a case of simple pendulum. अब हम सिंपल पेंडुलम लेके चलते हैं और उसके लिए हम जनरलाइज्ड लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे और सिंपल पेंडुलम प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन. लेट अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन एक्स जेड प्लेन. सो हम एक सिंपल पेंडुलम कंसिडर कर रहे हैं एंड ये जो सिंपल पेंडुलम है ये एक्स जेड प्लेन में ऑसिलेट करता है. सो द हार्मोनिक कंस्टेंट्स आर, अगर इसके लिए हार्मोनिक कंस्टेंट्स निकालें तो वो क्या आएंगे? सो g1 is equal to y1 equal to 0 because the pendulum is oscillating in xz plane. So एक कंस्टेंट हमको मिलेगा g1 equal to y1 equals to 0 and since the length of pendulum is constant, because here we are discussing about simple pendulum. So simple pendulum के केस में पेंडुलम की लेंथ कांस्टेंट होती है. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज एल स्क्वायर, वेर एल इज द टोटल लेंथ ऑफ पेंडुलम. सो द सेकंड कंस्टेंट विल बी g2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. नाउ dg by dt is del g by del t plus del g by del r into r dot, because here the constant does not depend on velocity, so dg by dt is given by this relation. Now the applied force is fx equal to fy equal to 0 and fz equal to mg, because in z direction the weight of pendulum is acting, so fz equal to mg and there is no force in x and y direction, so fx equal to fy equal to 0. so z direction में पेंडुलम का वेट है इसलिए fz हमने mg लिया है, जबकि एक्स एंड वाई डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है. सिंस देयर आर टू कंस्टेंट्स g1 एंड g2, तो यहां पर एक कंस्टेंट हमारा g1 है, दूसरा कंस्टेंट हमारे पास में g2 है. सो देयर आर टू कंस्टेंट्स एंड दीज कंस्टेंट्स आर g1 एंड g2. सो वी रिक्वायर्ड two multipliers lambda 1 and lambda 2. So lambda हमारा Lagrange's undetermined multiplier था and lambda की वैल्यू I से k तक मूव कर रही थी. If there are k constraints, since here we have only two constraints, so we required two multipliers and these multipliers are represented by lambda 1 and lambda 2. So therefore equation of motion is
इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी ये थी जो हमने जनरलाइज्ड लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन में निकाली थी। अब लैम्डा जो हमारे पास में है वो लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 है। सो अगर इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लिखें एक्स डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए एंड जेड डायरेक्शन के लिए, तो वो क्या हो जाएगी? फॉर होलोनोमिक कंस्ट्रेंट डेल एच अपॉन डेल आर डबल डॉट इज इक्वल टू डेल जी बाई डेल आर। सो डेल एच आई अपॉन डेल आर जी डबल डॉट की जगह हम डेल जी बाई डेल आर लिख सकते हैं। सो द इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन, सो एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास में आ जाएगी एम एक्स डबल डॉट माइनस लेमडा 1 डेल जी वन बाई डेल एक्स माइनस लेमडा 2 डेल जी टू बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 because there is no applied force in x direction, so fx applied is 0। so यहां पर fx applied हमने शो नहीं किया है। Similarly, the equation of motion for y direction will be my double dot minus lambda 1 del g1 upon del y minus lambda 2 del g2 अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। अब यहां पर भी हमारा अप्लाइड फोर्स नहीं है बिकॉज देयर इज नो अप्लाइड फोर्स इन वाई डायरेक्शन, वेयर एज इन जेड डायरेक्शन द वेट ऑफ द पेंडुलम और द वेट ऑफ बॉब इज एक्टिंग। सो इन जेड डायरेक्शन वी यूज एफ जेड अप्लाइड इक्वल टू एम जी। सो जेड डायरेक्शन में पेंडुलम का वेट एक्ट कर रहा है, इसलिए यहां पर हम एम जी यूज करेंगे। सो द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर जेड डायरेक्शन विल बी एम जेड डबल डॉट माइनस एम जी माइनस लेमडा 1 डेल जी वन बाई डेल जेड माइनस लेमडा 2 डेल जी टू बाई डेल जेड इक्वल टू 0। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर जेड डायरेक्शन। सो एक्स डायरेक्शन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा ये आ गया, वाई के लिए ये है एंड जेड डायरेक्शन के लिए ये हो गया है। सिंस g1 इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 एंड g2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 0, these two are constants. So if we differentiate these equations with respect to x, with respect to y and with respect to z, then what will happen? So del g1 by del x is equal to 0. So del g1 by del x equals to 0. Del g1 by del y equal to 1. So del g1 by del y equals to 1 and del g1 by del z equals to 0. So del g1 by del z equals to 0, क्योंकि यहां पर x एंड z पार्ट नहीं है, सो इसलिए अगर इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू z अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू 0 मिलेगी, जबकि अगर इसको विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करोगे तो हमको 1 मिलेगा। नाउ g2 इज दिस वन, सो del g2 by del x equal to 2x. So del g2 by del x equals to 2x. Now del g2 by del y is equal to 2y. So del g2 by del y equals to 2y and del g2 by del z equals to 2z. So del g2 by del z equals to 2z. So del g1 by del x, del g1 by del y एंड डेल g1 बाई डेल z ये आ गया। इसी टाइप से डेल g2 बाई डेल x, डेल g2 बाई डेल y एंड डेल g2 बाई डेल z हमको ये मिल गया है। अब ये जो वैल्यूज हैं इनको हम इन इक्वेशंस में रखते हैं तो क्या होगा, यहां पर हम 0 और यहां पर 2x रखते हैं। सो इक्वेशन ऑफ मोशन इन x डायरेक्शन विल बी mx डबल डॉट
minus twice lambda 2 x equal to 0. Similarly, if we put del g1 by del y equals to 1 and del g2 by del y equals to 2y, then the equation of motion for y direction will be my double dot minus lambda 1 minus twice lambda 2 y equal to 0. And if we substitute del g1 by del z equal to 0 and del g2 by del z equals to twice z, then the equation of motion for z direction will be mz double dot minus mg minus twice lambda to z equal to 0. So these are the equation of motion along x direction, along y direction and along z direction respectively. नाउ एक इक्वेशन हमने ये निकाली है, एक हमारी ये है और एक इक्वेशन हमारी ये थी. सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, बिकॉज द टोटल लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज कांस्टेंट, सो एक इक्वेशन हमको ये मिली थी. नाउ जेड स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब यहां पर हम एल स्क्वायर कॉमन लेते हैं, सो जेड स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर. Since we want to find the value of z, so on taking the square root of this equation, we get z equal to L into root of 1 minus x square plus y square upon L square. So z की वैल्यू हमको ये मिल रही है. Now we expand it by using binomial theorem. So अगर इस इक्वेशन को हम binomial theorem यूज करके एक्सपांड करें, देन z इक्वल टू L इंटू 1 माइनस, बाइनोमियल थ्योरम में पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, सो 1 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर. सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज वेरी मच लेस देन एल स्क्वायर, क्योंकि पेंडुलम हमारा z डायरेक्शन में लटका हुआ है, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज वेरी मच लेस देन एल स्क्वायर. सो हायर पावर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. इसी टाइप से ये वैल्यू भी नेग्लेक्ट हो जाएगी. इट मींस z इज नियरली इक्वल टू l. सो z की वैल्यू ऑलमोस्ट l के इक्वल होगी. इट मींस z इक्वल टू l इक्वल टू कांस्टेंट, बिकॉज l इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, सो z इक्वल टू कांस्टेंट. सो z डॉट इज इक्वल टू z डबल डॉट इक्वल टू 0. सो अगर इसका हम डिफरेंशियल लें, सो z डॉट इक्वल टू 0 एंड सेकेंड डिफरेंशियल लोगे, सो z डबल डॉट इक्वल टू 0. सो यहां पर z डबल डॉट हमारा 0 आ जाएगा एंड z की वैल्यू हम l रख देते हैं. सो अगर ये वैल्यूज हम यहां पर रखें तो हमको क्या मिलेगा, mg प्लस ट्वाइस लेमडा टू l इक्वल टू 0, क्योंकि z डबल डॉट हमारा 0 हो गया है एंड z को हमने l से रिप्लेस कर दिया है. सो mg प्लस ट्वाइस लेमडा टू l इक्वल टू 0, और यहां से हमको लेमडा टू की वैल्यू निकालनी है. सो लेमडा टू हमको क्या मिलेगा, माइनस mg अपॉन ट्वाइस l, क्योंकि mg को आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे, so twice lambda 2 L equals to minus mg, so lambda 2 is equal to minus mg upon twice L. so lambda 2 जो लैग्रेंज मल्टीप्लायर था उसकी वैल्यू हमको माइनस mg अपॉन ट्वाइस L मिल गई है. अब हम lambda 1 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं. so m y डबल डॉट माइनस lambda 1 माइनस ट्वाइस lambda 2 y इक्वल टू 0 आया था. Since at every instant y equals to 0, so हर केस में y की वैल्यू हमारी 0 है. सो
अगर इसका डिफरेंशियल करोगे सो वाई डॉट भी जीरो आएगा, एंड सेकंड डिफरेंशियल करोगे सो वाई डबल डॉट भी जीरो आएगा। सो वाई डॉट इक्वल टू वाई डबल डॉट इक्वल टू जीरो। सो इस इक्वेशन में वाई को आप जीरो करो, वाई डबल डॉट को भी जीरो करो, सो ये क्या हो जाएगा m इंटू जीरो माइनस लेमडा वन माइनस ट्वाइस लेमडा टू इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। और यहां से हमको लैग्रेंज मल्टीप्लायर लेमडा वन की वैल्यू मिलती है जीरो। सो लेमडा वन इक्वल टू जीरो। सो लेमडा वन भी हमने निकाल लिया है एंड लेमडा टू भी हमने निकाल लिया है। नाउ एम एक्स डबल डॉट माइनस ट्वाइस लेमडा टू एक्स इक्वल टू जीरो था, एंड लेमडा टू की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस एम जी अपॉन ट्वाइस एल। सो लेमडा टू की ये वैल्यू अगर हम यहां पर रखें तो क्या होगा, एम एक्स डबल डॉट माइनस ट्वाइस लेमडा टू को हमने रिप्लेस किया माइनस एम जी अपॉन ट्वाइस एल इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू से टू कैंसिल कर दो। सो दिस इक्वेशन विल बी एम एक्स डबल डॉट प्लस एम जी बाई एल इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, और x डबल डॉट प्लस जी बाई एल इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि m कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। सो हमको ये इक्वेशन मिलेगी, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन हमारी यही होती है, एंड हियर रूट जी बाई एल इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी। सो रूट जी बाई एल इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। दिस इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ जी बाई एल। सो ये जो इक्वेशन हमको मिली है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, और ये जो पेंडुलम है ये जो मोशन है इस मोशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी रूट ऑफ जी बाई एल। ऑल्सो लेमडा वन इक्वल टू जीरो एंड लेमडा टू इक्वल टू माइनस एम जी बाई ट्वाइस एल। सो ये हमने लैग्रेंज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स की वैल्यू निकाली थी। सो इस इक्वेशन के लिए ओमेगा हमारा ये होगा एंड लैग्रेंज मल्टीप्लायर हमारे ये होंगे। नाउ द एक्स कंपोनेंट ऑफ कंस्टेंट फोर्स। सो कंस्टेंट फोर्स का अगर हम एक्स कंपोनेंट निकालें तो वो क्या आएगा, इक्वेशन हमारे पास में थी एम एक्स डबल डॉट माइनस ट्वाइस लेमडा टू एक्स इक्वल टू जीरो एंड लेमडा टू इक्वल टू माइनस एम जी बाई ट्वाइस एल, और ये वैल्यू हम यहां पर रखें तो हमको मिलता है एम एक्स डबल डॉट प्लस एम जी एक्स अपॉन एल इक्वल टू जीरो। एम एक्स डबल डॉट इज फोर्स ऑफ कंस्टेंट इन एक्स डायरेक्शन, जिसको हम एफ एक्स भी लिख सकते हैं। सो दिस विल गिव एफ एक्स इक्वल टू माइनस एम जी एक्स अपॉन एल। नाउ ये हमारा सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ एल है, एंड दिस इज इट्स मीन पोजीशन। सो मीन पोजीशन से किसी टाइम पर इसका जो एंगल है वो हमारा थीटा है। सो इस एल का हम एक्स कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट निकाले तो वो क्या आएगा, दिस विल बी द एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज गिवन बाय एल साइन थीटा, क्योंकि एंगल की तरफ कंपोनेंट हमारा कॉस थीटा होता है एंड उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा होता है। सो ये कंपोनेंट आ जाएगा एल साइन थीटा, जबकि ये कंपोनेंट होगा एल कॉस थीटा। इट मींस x इक्वल टू एल साइन थीटा एंड z इक्वल टू एल कॉस थीटा। सिर्फ x की जगह हम एल साइन थीटा रखें तो अब क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एम जी अपॉन एल इंटू एल साइन थीटा, एल से एल कैंसिल कर दो। सो एफ एक्स इक्वल टू minus mg sin theta if this angle is very small. So in case of a small angle sin theta equal to theta.
सो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, सो इसको अगर थीटा करें सो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा, सो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एम जी थीटा, सो दिस इज द फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट इन एक्स डायरेक्शन। सो कंस्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट हमारा ये होगा। नाउ द वाई कंपोनेंट ऑफ कंस्टेंट फोर्स, सो वाई कंपोनेंट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन लेते हैं जो हमारे पास में ये थी। सो यहां से हमको मिल रहा है एम वाई डबल डॉट इज इक्वल टू लेमडा वन प्लस ट्वाइस लेमडा टू वाई, एंड लेमडा वन हमारा जीरो है जबकि लेमडा टू हमारा माइनस एम जी अपॉन ट्वाइस एल है। सो जैसे ही यहां पर आप माइनस एम जी अपॉन ट्वाइस एल रखोगे सो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस एम जी बाई एल एंड वाई इक्वल टू जीरो, सो वाई को हमने जीरो कर दिया है। सो एम वाई डबल डॉट मीन्स द वाई कंपोनेंट ऑफ कंस्टेंट फोर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एफ वाई। सो ये इसको हम एफ वाई लिख देते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। सो एफ वाई इक्वल टू जीरो, सो कंस्टेंट फोर्स का वाई कंपोनेंट हमारा जीरो होगा। नाउ द जेड कंपोनेंट ऑफ कंस्टेंट फोर्स, अब जेड कंपोनेंट हम कंस्टेंट फोर्स का निकाल लेते हैं। सो जेड डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन की हमको रिक्वायरमेंट होगी जो हमारी ये थी, एंड लैम्डा टू की वैल्यू माइनस एम जी बाई ट्वाइस एल था। सो एम जेड डबल डॉट माइनस एम जी इक्वल टू ट्वाइस लैम्डा टू जेड, और इस पूरे को हम जेड कंपोनेंट ऑफ कांस्टेंट फोर्स कहेंगे जिसको हम एफ जेड लिखते हैं, एंड लैम्डा टू की जगह आप माइनस एम जी बाई ट्वाइस एल रखो, सो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी माइनस एम जी जेड अपॉन एल। अब पेंडुलम का डायग्राम अभी हमने ये लिया था और एल को रिजोल्व करके हमने एल साइन थीटा एंड एल कॉस थीटा निकाला था। सिर्फ जेड इक्वल टू एल कॉस थीटा, तो जेड की जगह आप एल कॉस थीटा रख दो, सो दिस विल बी माइनस एम जी अपॉन एल इंटू एल कॉस थीटा, एल से एल कैंसिल हो गया, सो एफ जेड इक्वल टू माइनस एम जी कॉस थीटा, सो एफ जेड इक्वल टू minus mg cos theta, and if theta is very small so cos theta will be 1. So in case of a small angle the value of cos theta is approximately 1, so इसको 1 कर दो, so fz is equal to minus mg, so fz equal to minus mg। fx हमने ये निकाला था, fy हमारा ये था, एंड एफ जेड की वैल्यू ये आ गई है। These forces are actually the component of tension in the string। तो ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा उन टेंशन के एक्चुअल में जो कंपोनेंट होंगे वो ये हमारे कंस्टेंट्स हैं जो हमने एफ एक्स, एफ वाई एंड एफ जेड की फॉर्म में निकाले हैं। नाउ डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल, अब इसके बाद में हम डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। सो डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल, नाउ न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर jth पार्टिकल। सो jth पार्टिकल के लिए अगर हम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो वो क्या होगी, एफ जे अप्लाइड प्लस एफ जे इक्वल टू पी जे डॉट, since according to Newton's second law of motion F equal to dp by dt and F is total force which includes external force and constant force, so Fj applied is external force or applied force on jth particle, Fj is force of constraint on jth particle, and Pj is its linear momentum. So Fj applied is applied force, Fj is constant force, and Pj is linear momentum on jth particle. Since the virtual work done by
ऑल द कंस्टेंट फोर्सेस इज जीरो। कंस्टेंट फोर्सेस के कारण जो वर्चुअल वर्क होता है वो हमारा जीरो होता है। सो वर्चुअल वर्क अगर निकालोगे, सो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू सिग्मा जे एफ जे डॉट डेल्टा आर जे इक्वल टू जीरो। दिस इज द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ jth पार्टिकल एंड दिस इज द फोर्स ऑफ कंस्टेंट। एंड कंस्टेंट फोर्स के कारण वर्चुअल वर्क हमारा जीरो है। सो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। नाउ इस इक्वेशन को अगर हम वर्क के लिए लिखें तो डेल्टा आर जे से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो द वर्चुअल वर्क डन इज सिग्मा जे इक्वल टू 1 टू n एफ जे अप्लाइड प्लस एफ जे माइनस पी जे डॉट डॉट डेल्टा आर जे इक्वल टू जीरो। सो यहां पर हमने पी जे डॉट को लेफ्ट में ट्रांसफर कर दिया है। सो वर्चुअल वर्क हमको ये मिला है। बट द वर्चुअल वर्क डन बाय ऑल द कंस्टेंट फोर्सेस इज जीरो। सो सिग्मा जे इक्वल टू 1 एफ जे डॉट डेल्टा आर जे विल बी जीरो। तो ये इक्वेशन हम यहां पर लगाएं तो ये चेंज हो जाएगी हमारी सिग्मा जे इक्वल टू 1 टू n एफ जे अप्लाइड माइनस पी जे डॉट डॉट डेल्टा आर जे इक्वल टू जीरो। Here minus pj dot appears as an effective force called the reverse force of inertia on the jth particle. So minus pj dot यहां पर effective force की फॉर्म में appear हुआ है जिसको हम jth पार्टिकल का रिवर्स फोर्स ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और हमको ये जो इक्वेशन मिली है दिस इज डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। सो दिस इज डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल का मैथमेटिकल फॉर्म अगर लोगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगी। नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। फर्स्ट पॉइंट इज अनलाइक न्यूटन्स 3n इक्वेशन ऑफ मोशन, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल इज जस्ट वन इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लें n पार्टिकल सिस्टम के लिए सो हमको 3n इक्वेशन ऑफ मोशन मिलती है, जबकि डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल में हमारे पास में सिंगल इक्वेशन ऑफ मोशन है या वन इक्वेशन ऑफ मोशन है। इट डज नॉट इन्वॉल्व द फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट इन एनी वे, सो इट इज सफिशिएंट टू स्पेसिफाई all the applied forces only। अब डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल अभी हमने लिया था और डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल में कोई भी फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट की बात हमने नहीं की थी क्योंकि कंस्ट्रेंट फोर्सेस के कारण जो वर्चुअल वर्क होगा वो जीरो होगा। सो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल डज नॉट इन्वॉल्व द फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन एनी वे, so it is sufficient to specify all the applied forces only। so अगर केवल हम applied forces को स्पेसिफाई करें तो वो हमारे लिए sufficient होगा, यहां पर constant force की रिक्वायरमेंट नहीं है। it does not require the knowledge of constant relations except for determining delta rj। अब डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल में हमको कांस्टेंट रिलेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर अगर हमको वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वहां पर हमको कांस्टेंट रिलेशन की रिक्वायरमेंट होगी। इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर ऑल रियोनोमिक एंड स्क्लेरोनोमिक सिस्टम दैट आर आइदर होलोनोमिक और होमोजीनियस नॉन होलोनोमिक। सो ये जो इक्वेशन हमने ली है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, ये इक्वेशन हमारी रियोनोमिक सिस्टम के लिए एंड स्क्लेरोनोमिक सिस्टम के लिए भी वैलिड है। और ये सिस्टम चाहे तो आपके होलोनोमिक हो या होमोजीनियस नॉन होलोनोमिक हो, all the systems
for which D'Alembert's principle is valid is called D'Alembertian system. So वे सारे सिस्टम जिनके अंदर D'Alembert प्रिंसिपल हमारा वैलिड है उसको हम D'Alembertian सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा D'Alembert's प्रिंसिपल गिव अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ मैकेनिक्स। सो मैकेनिक्स की कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करो, D'Alembert प्रिंसिपल हमको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। D'Alembert's principle is more elementary than the variational principle because it requires no integration with respect to time. वेरिएशनल प्रिंसिपल अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सो वेरिएशनल प्रिंसिपल में हमको इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए हमने कहा है कि D'Alembert प्रिंसिपल जो है वो हमारा मोर एलिमेंट्री है देन द वेरिएशनल प्रिंसिपल, क्योंकि इस प्रिंसिपल में हमको टाइम के रेस्पेक्ट में किसी भी इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। However, the disadvantage is that the virtual work of the inertial force is polygenic and this is not reducible to a single scalar function. So it is not suitable for curvilinear coordinate. So mainly इसका डिसएडवांटेज ये है कि इनर्शियल फोर्स जो है उसके कारण जो वर्चुअल वर्क होगा वो हमारा पॉलीजेनिक होगा और इसको हम सिंगल स्केलर फंक्शन में रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। सो दिस प्रिंसिपल इज नॉट सुटेबल फॉर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। सो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट के लिए ये प्रिंसिपल हमारा सुटेबल नहीं है। सो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। यहां पर हमने जनरलाइज्ड लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस किया है एंड साथ में हमने D'Alembert प्रिंसिपल भी डिस्कस किया है। सो गुड बाय।